Vacuoles are class 9th, subject science, chapter 5, part 3, cytoplasm. कोशिका द्रव. When we look at the temporary mounds of onion peels as well as human cheek cell, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane. This region takes up very little stand. It is called the cytoplasm. The cytoplasm is the fluid content inside the plasma membrane. It also contains many specialized cell organelles. Each of these organelles perform a specific functions for the cell. जब हमने प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की स्लाइड को देखा, तब हमें प्रत्येक कोशिकाओं में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था. इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था. इसे कोशिका द्रव कहते हैं. प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है. इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका अंग कहते हैं. प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं. कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव कहते हैं. सेल ऑर्गेनेल्स आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटी. Beside the absence of a defined nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also absent. On the other hand, the eukaryotic cells have nuclear membrane as well as membrane-enclosed organelles. कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होती है. प्रोकैरियोटी कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते, जबकि यूकैरियोटी कोशिकाओं में केंद्र की झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं. The significance of membranes can be illustrated with the example of viruses. Viruses lack any membrane and hence do not show characteristic of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply. झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं. वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती और इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता है. सेल ऑर्गेनेल्स कोशिका अंगक. Every cell has a membrane around it to keep its own content separated from the external environment. Large and complex cells, including cells from multicellular organisms, need a lot of chemical activities to support their complicated structure and functions. To keep these activities of different kinds separate from each other, these cells use membrane-bound little structures or organelles within themselves. This is one of the features of the eukaryotic cells, that of these organelles are visible only with an electron microscope. प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहते हैं. बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं, जिसमें बहुकोशिक जीवों की कोशिकाएं भी शामिल है, को भी उपापचयी क्रियाओं के बहुत आवश्यकता होती है जिसमें कि वह जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सके. इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए यह कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती है. यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है. इनमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है. We have talked about the nucleus in a previous section. Some important examples of cell organelles which we will discuss now are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, mitochondria, plastid, and vacuoles.
They are important because they carry out some very critical functions in cell. हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा है। अन्तर्द्रवी जलिका, गल्गी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लेटेड कोशिका अंगों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिन पर हम विचार करेंगे। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अन्तर्द्रवी जलिका। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is a large network of membrane-bound tubes and sheets. It looks like long tubules or round or oblong bags. The endoplasmic reticulum membrane is similar in structure to the plasma membrane. There are two types of endoplasmic reticulum: rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Look rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface. The ribosomes, which are present in all active cells, are the sites of proteins manufactured. The manufactured proteins are then sent to various places in the cell depending on need. Using the endoplasmic reticulum, the smooth endoplasmic reticulum help in the manufacture of fat molecules or lipids important for cell functions. Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. This process is known as membrane biogenesis. Some other protein and lipids function as enzymes and hormones. Although the endoplasmic reticulum varies greatly in appearance in different cells, it always from a network system. अन्तर्द्रवी जलिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। अन्तर्द्रवी जलिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अन्तर्द्रवी जलिका दो प्रकार की होती है: खुरदुरी अन्तर्द्रवी जलिका और चिकनी अन्तर्द्रवी जलिका। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती है और तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवांत जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विभिन्न रूपों में दिखाई देती है, परंतु सदैव एक जलिका तंत्र का निर्माण करती है। Thus, one function of the endoplasmic reticulum is to serve as channels for the transport of materials, especially protein, between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. The endoplasmic reticulum also functions as a cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell. In the liver cells of the group of animals called vertebrates, Chapter 7, smooth endoplasmic reticulum plays a crucial role in detoxifying many poison and drugs. इसी प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कार्य कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों, मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रवी ढांचे का कार्य भी करती है। एक वर्ग के जंतुओं जिन्हें कशेरुक भी कहते हैं, जो चैप्टर 7 में आप पर देखेंगे, ये यकृत की कोशिकाओं में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गल्गी apparatus, गल्गी उपकरण। The Golgi apparatus, first described by
Camilo Golgi consists of a system of membrane-bound vasculars arranged approximately parallel to each other in stack called cisterns. These membranes often have constrictions with the membrane of endoplasmic reticulum and therefore constitute another proton of a complex cellular membrane system. कैमिलो गल्जी द्वारा वर्णित गल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों के संपर्क में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्लियों से होता है, इसलिए जटिल कोश की झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। द मटेरियल साइंटिस्ट नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. Its function include the storage, modifications and packing of product in vessels. In some cases, complex sugars might be made from simple sugars in the Golgi apparatus. The Golgi apparatus is also involved in the formations of lysosomes. See 5.5। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिए जाते हैं। इस कार्य में भी शामिल है कि पुटिका के पदार्थ का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थिति में गल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। लाइसोसोम्स आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल. Lysosomes help to keep the cell clean by digesting any foreign materials as well as worn out cell organelles. Foreign materials entering the cell such as bacteria or food as well as old organelles end up in the lysosome, which break them up into small pieces. Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic material during the distributions in cellular metabolism. For example, when the cell get damaged, lysosomes might burst and the enzyme digest their own cell. Therefore, lysosomes are also known as the suicide bags of a cell. Structurally, lysosomes are membrane-bound sacs filled with digestive enzymes. These enzymes are made by air. संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, जिन्हें पाचक एंजाइम भी कहते हैं। इन एंजाइमों को ये बनती है। लाइसोसोम्स कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। यह बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगों को टूटे फूटे भागों को पचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम्स में चले जाते हैं तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और लाइसोसोम्स में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकीय चयापचय मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। Mitochondria are now as the powerhouses of the cell. The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP, adenosine triphosphate molecules. ATP is now as the energy currency of the cell. The body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds and for mechanical work. Mitochondria have two membrane covering instead of just one. The outer membrane is very porous while
the inner membrane is deeply folded. These folded create a large surface area for ATP generating chemical reaction. Mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosomes. Therefore, mitochondria are able to make some of their own proteins. माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है। भीतरी झिल्ली बहुत अधिक बलित होती है। ये विलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। Plastid are present only in plant cell. There are two types of plastid: chromoplast, colored plastids, and leucoplast. White or colorless plastid containing the pigment chlorophyll are known as chloroplast. Chloroplasts are important for photosynthesis in plants. Chloroplasts also contain various yellow or orange pigment in addition to chlorophyll. Leucoplasts are primarily organelles in which materials such as starch, oil, and protein granules are stored. प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो रंगीन प्लास्टिड होते हैं, जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड होते हैं। जिससे क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है, जिसे उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक हैं जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। The internal organizations of the plastid consists of numerous membrane layers embedded in a material called the stroma. Plastid are similar to mitochondria in external structure like the mitochondria. Plastid also have their own DNA and ribosome. क्लोरोप्लास्ट के भीतरी रचना में बहुत सी झिल्लियां वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। वैक्यूल्स, रसधनियाँ। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। Vacuoles are small sized in animal cell. Wheel plant cell have very large vacuoles. The central vacuoles of some plant cell may occupy 50